آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی 19ویں آیت سے لے کے 24ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو خداوند نے آج روح القدس کے وسیلہ سے دیا، اور خداوند ہمیں سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آج ہم اس کلام میں جو خدا کے روح نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غریب لازر اور امیر لازر ہیں۔ ہم ان کو جسمانی طور پر غریب امیر نہیں، بلکہ اس کو روحانی طور پر دیکھیں گے کہ خداوند کی نظر میں دولت مند اور غریب میں کیا فرق ہے، اور خداوند انصاف کے لیے ان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جو زمین کے امیر ہیں ہم ان کو نہیں، بلکہ جو روحانی طور پر خداوند کی تعلیم اس میں پائی جاتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اسی طرح زمین پر جو غریب ہیں ہم ان کو، جو جسمانی طور پر غریب ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم اس میں جو روحانی پہلو ہے اور جو روحانیت ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہم عام طور پر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو امیر ہے، ہم جسمانی طور پر پہلے اس روحانی اس کو سیکھنے کے لیے ہم جسمانی چیزوں کو دیکھ کر نظر کر کے سیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں روحانی سمجھ آئے، روحانی تعلیم ہمیں سمجھ لگے کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا اور کیا بتانا چاہتے ہیں۔ امیر شخص جو دولت مند ہے وہ کس طرح سے جیتا ہے، ہم اپنی زندگی میں یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو دولت مند ہے جو ارغوانی اور مین کپڑے پہنتا، یعنی جو امیر ہے، جو دولت مند ہے، وہ اعلیٰ مہنگے خوبصورت ترین اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ آرام سے اپنے تن بدن پر، اپنے جسم پر اچھا کپڑا پہنتا ہے اور ہر روز خوشی مناتا ہے۔ یعنی ہر روز وہ خوشی مناتا، پارٹیاں کرتا ہے، اور کیونکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ بآسانی اپنے لیے خوشیاں لے لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اور جو بھی اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے دل کی مرادیں ہیں، اس کی خواہشیں ہیں، وہ ان کو پورا کر کے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، آرام دیتا ہے، اور اس میں خوش رہتا ہے۔ پہلے ہم نے کپڑوں کی جسمانی ظاہری کی بات کی، دوسری بات ہم نے خوشی مناتا ہے یعنی دل کی بات کی، کہ جو اس کو اس کے دل میں آتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ اس کو بآسانی پورا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی، اور اس کو سوچنا نہیں پڑتا کہ میں خرچ کروں یا نہ کروں۔ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اس کو پورا کر پاتا ہے۔ تیسری بات ہے، اور شان و شوکت سے رہتا ہے۔ جب جو امیر ہے شان و شوکت سے اس لیے رہ پاتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنے پاس خادم یعنی ملازم اور نوکر چاکر رکھ پاتا ہے، اور ان کو وہ پے کرتا ہے، ان کو وہ دے دیتا ہے پیسے، اور وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کی شان و شوکت اسی طرح رہتی ہے، اور اس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اور بغیر محنت کے وہ عزت لیتا ہے۔
बगैर मेहनत के, मैं फिर से कहूँगी बगैर मेहनत के वो इज्जत ले लेता है, क्योंकि वो अमीर है, वो अपने पैसों से, अपनी दौलत से ये सारी चीज़ें अपने लिए हासिल बासानी कर लेता है। इसी तरह अब हम दूसरा पहलू देखते हैं और फिर इसके बाद हम इसका फ़र्क देखेंगे, रूहानी तौर पर इसको सीखेंगे। इसी तरह अब यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है कि जो लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ, नासूर जो उसके, नासूर यानी ज़ख्म जो उसके जिस्म पे है। अमीर को देखकर तो उसके जिस्म पे कोई नासूरों की बात नहीं, कोई जिस्मानी तकलीफ की बात नहीं की गई, उसको जिस्मानी कोई तंगी नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं है, उसको जिस्मानी कोई दुख नहीं है, बल्कि उस जिस्म पर उसने खूबसूरत महंगे तरीन कपड़े पहने हुए हैं, उसकी पोशाक महंगी है, अच्छी है, जैसे उसके दिल को लुभाती है वो वैसा पहन लेता है। लेकिन गरीब जो है, तन पर अच्छे कपड़े तो दूर की बात, उसके जिस्म पर भी नासूर हैं, यानी उसके जिस्म को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसके बदन में भी दर्द है, तकलीफ़ है, बीमारियां हैं और उसका जिस्म जो है वो तड़प रहा है, उसको तंगी उठानी पड़ रही है। नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। अब वो इतना गरीब है कि वो दरवाजे पर डाला गया है, उसका ना घर है ना बार है, उसके पास रहने को भी जगह नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके सर पे कोई छत नहीं है। ये कैसी जिंदगी है कि जिसके पास अपना मकान भी नहीं है, जिसके पास एक कमरा नहीं है कि वो उसमें रह सके। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। अब ख्वाहिशें, जब हम अमीर को देखते हैं तो लिखा है और हर रोज़ खुशी मनाता था, वो खुशियों पे खुशियाँ, इतने पैसा लुटाता था कि वो अपनी खुशियाँ जो है ना वो पूरी कर रहा है। लेकिन हम जब गरीब को देखते हैं तो खुशियाँ तो बहुत दूर की बात है, वो अपने लिए वक्ती, जो उस टाइम उसको ज़रूरत है रोटी की, उसकी वो जिस्म की भूख भी, उसके पेट भी भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो इतनी ज़्यादा तंगी काट रहा है कि उसके पास अपने खाने के लिए रोटी भी नहीं, वो दूसरों का मोहताज है कि मुझे यहाँ से रोटी मिल जाएगी। उसने ऐसी गुर्बत और ऐसी तंगी काटी कि अच्छा कपड़ा लिबास तो बहुत दूर की बात है, उसके पास खाने को जो उसकी ज़रूरत है वो भी नहीं है। आगे हम देखते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। पहले हम देख रहे हैं कि शान और शौकत से रहता है, जिसमें बगैर मेहनत के उसको इज्जत मिली हुई है। यहाँ पे जब कुत्ते नासूर चाटेंगे उसकी, तो उसकी बेइज्जती है, जिल्लत है, रुसवाई है, गरीब लाजिर की रुसवाई है, क्योंकि कुत्ते जो हैं आकर उसको चाट रहे हैं। कितनी ज़्यादा मतलब उसकी बेइज्जती हो रही है, उसके जिस्म की, उसकी अना की, वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों में एक को हम पॉजिटिव देख रहे हैं, एक को हम मुकम्मल तौर पर उसी तरह से नेगेटिव देख रहे हैं। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। अब हम देखते हैं कि ये हमने जिस्मानी तौर पर जब हमने देखा खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद ने हमें ये तमसील बताने के लिए, सिखाने के लिए किस तरह से गरीब और अमीर की हमें तमसील बताई। अब हम इसको रूहानी तौर पर सीखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम गरीब की बात करेंगे। हम कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में देखते हैं, उसका 5वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन, खुदावंद का शुक्र है। इस आयत में लिखा है दिल के गरीब। ये मैंने पहले भी कलाम सुनाया है कि दिल का गरीब का मतलब है कि दिल में गरीबी का मतलब है कि कमी होना, पूरा ना कर सकना। तो जो आपके पास कमी है, आप कहते हो कि हाँ हम बहुत गरीब हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो दिल के गरीब का मतलब है कि दिल में जितनी आप अपने आप को दिल की ख्वाहिशों से अपने आप के अंदर कमी डालोगे, अपनी ख्वाहिशें निकालोगे, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं दिल का गरीब हूँ, मेरे अंदर ख्वाहिशों की गरीबी है, कमी है, मैं इसको पूरा नहीं करता, मेरा दिल खाली है।
लेकिन खुदावंद कहते हैं कि जो दिल के गरीब हैं, जिनके दिल ख्वाहिशों से अमीर नहीं है, भरे नहीं हुए, जिन्होंने अपने दिल को ख्वाहिशों से बिल्कुल गरीब किया हुआ है, खाली किया हुआ है और दिल में कुछ नहीं है। जैसे हमारे घरों में अगर कुछ नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, या हम ये देखते हैं हमारे बैग्स में, हमारे वॉलेट्स में अगर पैसे नहीं है तो हम कहेंगे हम गरीब हैं। हमारे अकाउंट्स में कुछ नहीं है, हमारे अकाउंट में कुछ नहीं है तो हम कहेंगे हम गरीब हैं। तो जिसके पास नहीं है वो गरीब है। तो दिल के अंदर अगर ख्वाहिश नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब है वो दिल का गरीब है। और खुदावंद कह रहे हैं कि दिल का जो गरीब है, बादशाही ऐसो ही की है कि ऐसे ही लोग खुदावंद को पसंद हैं जो जमीन पर, मैं आसमान की बात नहीं करी क्योंकि खुदावंद ने अमीर और गरीब की तमसील हमें जमीन के लिए बताई है कि तुम लोगों ने जमीनी जिंदगी कैसे जीनी है, गरीबी में जीनी है, अपने दिल को गरीब करना है, उसके अंदर से अपनी ख्वाहिशें निकालनी है। जितनी भी निकालोगे आप उतने ज़्यादा गरीब बनते जाओगे, और जो गरीब बन जाएगा आसमान पे वो जा सकता है, खुदा बाप के हुजूर जा सकता है, वो खुदा बाप के साथ सुकूनत कर सकता है। ये खुदावंद की तालीम है कि हमें ज़मीन पर इस तरह की ज़िंदगी जिएंगे तो ही हम आसमान पर हम हमेशा की ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी तो दिल की बात की कि जो दिल का गरीब है, लेकिन जहाँ पर जब हम गरीब लाजर को देखते हैं कि दिल, पहले तो हम ये देखते हैं कि जिस्म के अंदर दिल के अलावा रूह भी होती है, हमारा पूरा जिस्म भी होता है और जहन भी होता है, और हमारी बहुत सी दिल के अलावा बहुत सी सोचें जो जहन में होती हैं, जिस्म और जिस्म के बहुत से काम होते हैं। अब यहाँ पर हम जब दिल के गरीब को देखते हैं तो खुदावंद पसंद कर रहे हैं उस शख्स को जो दिल का गरीब है, और उसको खुदावंद कह रहे हैं ये मुबारक है। लेकिन लाजर के जिस्म में अब खुदावंद कह रहे हैं कि दिल के अलावा, इस तमसील में हम देखते हैं कि दिल के अलावा तुम्हारा दिमाग भी गरीब होना चाहिए, तुम्हारी रूह भी गरीब होनी चाहिए, तुम्हारा पूरा जिस्म भी गरीब होना चाहिए, और तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो भी गरीब होने चाहिए। तो तुम्हारे लिए खुदावंद हमें कहेंगे कि तुम मुबारक हो। लेकिन खुदावंद यहाँ पर ज़मीनी, हम आसमान की बादशाही की बात नहीं अभी करें कि ज़मीन पर खुदावंद कैसे चाहते हैं कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे तो खुदा के हुजूर मुबारक ठहरेंगे। तो गरीब क्या है? जब वो अपने सिर्फ दिल ही का गरीब नहीं होगा बल्कि वो दिमाग का भी गरीब होगा, उसके अंदर सोचे नहीं होंगी और जिस्म से भी वो गरीब होगा, तो वो खुदावंद के हुजूर मुबारक होगा। अब हम इसको रूहानी तौर पर ये देखते हैं कि कौन से गरीब, जैसे हम ज़मीन पर देखते हैं कि बहुत से गरीब गुरबा है, बहुत से लोग तंग हाल हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जितने भी ये वाले जिस्मानी गरीब हैं वो ये कहें कि हम गरीब हैं। तो हाँ, इसका मतलब है कि जो बादशाही है वो हमारे लिए है, तो हम भी गरीब लाजर की तरह आसमान की बादशाही में जाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं। और यीशु मसीह ने ये तमसील सुनाई है कि जो गरीब है वो जब मुएगा, दफन होगा, तो वो जिंदगी में जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। इस तमसील का मतलब रूहानी है। जो मसीह यीशु पर ईमान लाने के बाद अपने दिल को गरीब करता है और यीशु के कलाम के तालीम के मुताबिक अपने दिल में से ख्वाहिशें निकालता है, तो वो गरीब है। अब हम इसको और सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। अब जब वो गरीब, अब हम इस एक गरीब को मसीह पर ईमान लाने वाला देखेंगे। ये गरीब मसीह पर ईमान लाने वाला है। अब ये जो गरीब है ये एक मसीही है, यीशु पर ईमान रखने वाला ईमानदार है। ठीक है, लिखा है ये जो ईमानदार है नासूरों से भरा हुआ है। जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं तो हमें अपने जिस्म में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। हो सकता है लोग हमारे जिस्म से मुराद है, हो सकता है हमारे रिश्ते हमें बुरा भला कहें, हो सकता है जब हमें खुदावंद कोई नबूवत दे, कोई काम दे, कोई खिदमत दे
اور کہیں کہ تم نے میرے لیے ایسا کرنا ہے، لیکن آپ کے اپنے گھر والے اس کلام پر متفق نہیں ہوتے، اس کلام پر یقین نہیں کرتے اور بحث کرتے ہیں، اور جو غریب لازر یعنی جو مسیحی ہوگا اس کو دکھ دیتے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر پریشان ہوگا۔ وہ غریب لازر یعنی وہ مسیحی ذہنی طور پر جب وہ پریشان ہوگا، دل میں اس کے پریشانی آئے گی، دکھ محسوس کرے گا، تو اس کا جسم تڑپے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہاتھ سے نہ مارے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی کوڑا نہ مارے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وہ چھڑی نہ مارے، ہو سکتا ہے آپ کا کھانا پینا آپ کا نہ بند کریں، لیکن ذہنی طور پر آپ کو خداوند کے کلام کو پورا کرنے کے لیے وہ منع کریں اور آپ کو بار بار اکسائیں، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کلام میں ایسا نہیں لکھا، یہ نہیں۔ لیکن وہ غریب لازر یعنی وہ مسیحی جانتا ہے کہ خدا نے نبوت کی، اور خدا جو نبوت جس شخص کو ملتی ہے سوائے اس کے اور کوئی بھی اس نبوت کی پہچان نہیں کر پاتا۔ وہ وہی جانتا ہے کیونکہ خدا کا روح اس پہ اترتا ہے، خدا کا روح اس کو بتاتا ہے، خدا کا روح اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے نبوت پر پورا یقین کرنا اس غریب لازر یعنی مسیحی کا فرض ہے۔ اور جب لوگ یہ نہیں مانتے، ہو سکتا ہے جب آپ خداوند کے لیے کوئی کام کر رہے ہو، کوئی خدمت کر رہے ہو، تو آپ کو آپ کے ہی گھر والے ایک کمرے میں بند کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ہی گھر والے آپ کو روٹی دینا بند کر دیں۔ یہ میں جسم کی تکلیف کہہ رہی، یہ وہ غریبی ہے جو آپ مسیح یسوع کے نام کی خاطر آپ جسم پر اپنے لیے ٹارچر اور مصیبتیں اور اپنے رشتوں میں خرابیاں آپ لانے دے رہے ہو اور آ رہی ہیں، کیونکہ آپ مسیح یسوع کو نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ ناسور ہیں جو آپ کو جسم میں اس دنیا میں اپنوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، جو آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، کہ جب آپ مسیح کے کلام پر عمل کرتے تو آپ کو جسمانی طور پر دکھ دیتے ہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے، بار بار آپ کے ساتھ بحث کرتے، شکایت کرتے، آپ سے لڑتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ جسمانی تکلیف ہے۔ لیکن یہ وہ والے غریب نہیں جو اپنی جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوں گے یا جن کی تنخواہ میں وہ اپنا کھانا پینا پورا نہیں کر سکتے، یہ وہ غریبوں کی بات نہیں یہاں پر ہو رہی۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں روحانیت کی بات ہے، خدا روح ہے اور وہ روحانی کلام دیتے ہیں، روح سے تعلق کلام ہے، اور ہمیشہ خدا نے روحانی بات ہی کی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ناسوروں کو دیکھا، لکھا ہے اس کے دروازہ پر ڈالا گیا جو مسیح کے نام کی خاطر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو مسیح کے نام کی خاطر باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے اگر مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی مسیح کی وجہ سے کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جاتا۔ اکثر ایسا غیر قوموں میں ہوتا ہے، جب غیر قوم مسیح میں آتا ہے تو ان کے جو ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے پاس گھر چھت نہیں ہوتی، تو وہ مسیح کی خاطر غریب ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے جو روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں، جو کرسچن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی جب اس روحانیت کو، اس کلام کو، اس بھید کو، مکاشفہ کو، خداوند یسوع مسیح کی مکمل روحانی تعلیم کو نہیں جانتے سمجھتے، تو وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں جو مسیح پر ایمان لایا ہوتا ہے، جس نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوتا ہے، جس نے روح القدس کا بپتسمہ لیا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ وہ خود روحانی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس کے خلاف جاتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو بلانا پسند نہیں کر رہا ہوتا، اس گھر میں زیادہ عزت نہیں دی جا رہی ہوتی، پیار نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور طرح طرح سے اس کے خلاف پروپیگنڈے کیا جاتے ہیں، اس کی چگلیاں لگائی جاتی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اس کی برائیاں کی جاتی ہیں، تو اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جاتا۔ یہ جسمانی طور پر نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر ہے۔ آگے لکھا ہے اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، شان و شوکت اور بہت کچھ، کپڑے، جوتی۔ اب جو روحانی انسان ہے، جو مسیحی انسان ہے، جس کو میں غریب لازر سے تشبیہ دے رہی ہوں، کہ جو غریب لازر ہے وہ تمثیلاً بتایا گیا کہ وہ ایک مسیحی ہے، اور وہ جو مسیحی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنا پیٹ پالتا ہے،
ना तो उसको कपड़ों की, ना जूती की, ना उसको घर की, ना बार की, ना किसी चीज़ की नहीं होती। उसको सिर्फ ये होता है कि अब मैं वो रोटी खाऊं जिससे मैं जिंदा रहूं और मसीह की तालीम को और सीखूं, और जो खुदावंद ने ज़मीन पर मेरे लिए ज़िंदगी रखी है मैं सिर्फ उसको जीऊं। और जो खुदावंद मुझसे खिदमत लेना चाहते हैं कि अगर मैं दूसरों को कलाम सुनाऊं या खुदावंद की किसी कोई और खिदमत करूं, किसी चर्च में कोई खिदमत करूं, या खुदावंद जो भी मुझसे चाहते हैं मैं वो करूं, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस ज़रूरत पे रह जाता है कि जिस्मानी सिर्फ मुझे वक्ती रोटी मिले जिससे मैं जीता रहूं। उसके अलावा ना कपड़े, ना जूती, ना घर, ना कोई और ज़रूरत, ना और कोई ख्वाहिश, ना कोई और बात उसके दिल दिमाग में आती है। ये है गरीब लाजर यानी मसीही। आगे हम देखते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। जब नासूर चाटना, कुत्ते यानी जलील होना, खुदा के लिए रुस्वा होना, खुदावंत के लिए दुत्कारा जाना, आपकी बेकदरी होना। आप जब मसीह के नाम की खातिर किसी बात पे डट जाते हो कि नहीं, खुदावंत के कलाम में यही लिखा है और मैंने यही करना है, अगर आपके अपने या बेगाने उसको कबूल नहीं करते तो आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। लोग आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, जगह जगह आपका नाम खराब करते हैं और आपकी चुगलियां करते हैं। और आप जो, जैसे हम देखते हैं कि मसीह यीशु इस ज़मीन पर जब आए, तो जब यीशु मसीह कलाम सुनाते और मौज़े करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, तो वो उनके इस कलाम को, सच्चाई को और अच्छे कामों को देखने की बजाय यीशु मसीह के लिए ये कहते रहते थे कि देखो ये सब्त के दिन ये काम करता है। तो जो फकीह फरीसी हैं वो सिर्फ नुक्ताचीनी करते थे और खुदावंद यीशु की सिर्फ मुखालफत किया करते थे और उनको इज्जत देने की बजाय उनकी चुगलियां लगाते थे और उनको सलीब पर चढ़ाने की कोशिश करते थे। और वो चाहते थे कि इनको रुस्वा किया जाए, इनको कत्ल किया जाए, और जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह की जितनी बेइज्जती कर सकते थे वो करना चाहते थे। जहां जहां से भी उनको कोई भी नुक्ता मिलता था कि हम इसको यहां से पकड़ लेते हैं, हम इनको यहूदा इस्करियोती को रिश्वत देते हैं, तो वो ये सारे काम करते थे ताकि यीशु मसीह को रुस्वा करे। तो इसी तरह जब मसीह में कोई आता है और जब दूसरा शख्स मसीह को नहीं जानता उस तरह से, तो वो मुखालफत के साथ साथ रुस्वा करने के दर पर रहते हैं और उसको जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है। बहुत से लोग उस मसीह का मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि जब ये दुनिया अपने अरूज पर फैशन करती है, स्टाइल मारती है, कपड़े जूती अच्छे पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, अमीर जिंदगी गुजारते हैं, तो वो मसीही जो सादे लिबास में आ जाता है वो सिर्फ रोटी के लिए, रोटी की उसको होती है कि वो रोटी खा ले। और कुछ मसीही तो इतने मजबूत होते हैं कि वो रोटी तक की परवाह नहीं करते, अपने प्यास की, पानी की भी परवाह नहीं करते। तो जब वो इस तरह की जिंदगी जीते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दिल को गरीब कर लेते हैं और अपने कपड़े जूती पर ध्यान नहीं देते, अपने घर बार पर कि हमने ज़्यादा बड़ा घर बनाना है, पैसे कमाने में और अमीर होने में, अपना बिजनेस बनाने में, अपना बैंक बैलेंस बड़ा करने में उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो ज़ाहिर है जब ध्यान नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, तो वो अपने लिए सहूलतें नहीं, अपने लिए शान और शौकत वाली ज़िंदगी नहीं रख सकते, ना वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मना सकते हैं अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करके। तो वो क्या करते हैं, मसीही यानी गरीब लाजर ये करते हैं कि वो तंगी वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब वो तंगी वाली जिंदगी देखते हैं कि इनके तो कपड़े फटे हुए हैं, ये तो हमारे लेवल के नहीं है, ये तो हमारे स्टेटस के नहीं है, ये तो सादा रहते हैं, इन्होंने कोई मेकअप नहीं किया, इनके बाल प्यारे नहीं लग रहे, या ये तो हैंडसम नहीं है, ये तो प्रिटी नहीं है, इसके तो बाल नहीं अच्छे, इसके तो कपड़े नहीं अच्छे, ये तो फटे हुए कपड़े पहन के आ गई है या फटा हुआ लिबास पहन के आ गया है, इसके तो जूते टूटे हुए हैं,
इसके पास तो कुछ नहीं। तो लोग मसीह की खातिर, जिस गरीब लाजर ने अपने आप को गरीब मसीह के लिए किया है, दिल का गरीब, ज़हन का गरीब, अपने हाथों का गरीब, कि वो जिस्मानी मेहनत करके अपने लिए दौलत कमा के शान और शौकत वाली इज्जत नहीं कमा रहा, बल्कि वो क्या करता है, खुदावन यीशु मसीह के लिए मेहनत करता है और अपने आप को इस तरह से खाली कर देता, अपने आप को निचोड़ देता, अपने आप को सुखाड़ लेता है। तो जो लोग हैं, जो अमीर होंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको रुसवा करेंगे। तो कुत्ते आके उसके नासूरों को चाट रहे हैं, यानी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको जिल्लत और रुसवाई का लोगों के सामने सामना करना पड़ेगा और लोग उनको कम तरी से देखेंगे, उनको इस नजरों से देखेंगे कि वो शर्मिंदा हो रहे होंगे। तो जो उनको रसवाई जो है वो कहाँ से मिल रही है, जब वो मसीह के लिए अपने आप को गरीब करते हैं, मसीह के लिए कोई जिस्मानी काम करके, मेहनत करके या बिजनेस करके वो कुछ नहीं कर रहे या अपने लिए घर बार नहीं ले रहे, बल्कि वो अपनी सारी मेहनत जो है वो मसीह के कामों में लगा कर सिर्फ मसीह का काम करते हैं और अपने आप को सादा बनाते हैं और अपना ध्यान जो है वो रूह की खूबसूरती में लगाते हैं, ना कि बदन की खूबसूरती के लिए, ना तो बदन के आराम के लिए, ना तो कपड़ों के लिए, और ना ही अपने स्टेटस के लिए कि लोग क्या कहेंगे, या मैं इस तरह से रहूँगा, या मैं खुदावंद के लिए सादा रहूँगा, या मैं ज़्यादा फैशन नहीं करूँगा, या मेरे कपड़े और जूता लोगों के स्टैंडर्ड और आजकल के ज़माने के मुताबिक नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। वो इन सारी बातों के से जो गरीब लाजर है रोज़ाना जंग करता है, वो अपने दिल को रोज़ाना मारता है, वो अपने दिल को रोज़ाना गरीब करता है और अपना ध्यान, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ाना अपना ध्यान इन बातों से हटाता है। तो जब वो इस तरह की ज़िंदगी जीता है, हो सकता है वो टीवी ना देखता, वो उसमें भी वो दुआ करता हो, वो गरीब लाजर इतनी मेहनत करता हो कि लोग बाकी टीवी देख के इंजॉय करते हो, खुशियां मनाते हो, देखते हो और उनको वो अच्छा लग रहा हो। लेकिन जो गरीब लाजर एक मसीही होगा, हो सकता है वो बाहर अकेला बैठा हो या वो गैदरिंग में ना बैठा हो, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, देखो अकेला बैठा है, इसको तो कोई बुलाता नहीं। ये बात नहीं है कि उसको कोई बुलाता नहीं, वो जिसको बुला रहा है ना वो खुदा है, उसका जो दोस्त है ना वो यीशु है, उसका जो बाप है ना वो खुदा है। वो किस कंपनी में उस वक्त है? रूहुल कुद्स के वसीला से वो खुदा बाप और यीशु मसीह की कंपनी में उस वक्त बैठा हुआ है। तो उसकी कंपनी इंसानों की कंपनी से उस वक्त बहुत बड़ी, बुलंद और सबसे आला है और सबसे बुजुर्ग है। लेकिन जो देखने वाला होगा वो कहेगा देखो अकेला ही बैठा रहता है, हो सकता है ये इसको कोई बुलाता नहीं है, इसको कोई पसंद नहीं करता, या पता नहीं अजीब बातें करता है, ये तो रहता ही अकेला है। वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ यीशु मसीह रहते हैं, उसके साथ खुदा बाप रहते हैं, उसके अंदर रूहुल कुद्स रहता है। तो ये सारी बातें जो है वो एक गरीब लाजर में ही हो सकती है। और गरीब लाजर कोई हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है, हम देखते हैं कि वो इब्राहिम की गोद में है। तो खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए जो अभी खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट सब्र डे पर इसको जारी रखा जाएगा और इसके बारे में जो खुदावंद और तालीम देना चाहते हैं वो रूहुल कुद्स के वसीला से दी जाएगी। तो हमने इसमें से सिर्फ अभी आज जो हमने देखा है कि गरीब लाजर एक मसीही है और वो मसीह की खातिर अपने आप इस ज़मीन पर जब वो ऐसी ज़िंदगी मसीह के लिए दिल का गरीब, ज़हन का गरीब, रूह का गरीब, जिस्म का गरीब बनकर ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा, वो इब्राहिम की गोद में होगा और वो खुशहाली वाली ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि उसने मसीह यीशु की खातिर इस ज़मीन पर रहकर दुख उठा लिया है जो उसके हिस्से का था। तो खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे कि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और हम ये सीखें कि हमने भी अपनी ज़िंदगी गरीब लाजर की तरह गुजारनी है, अपने दिल को गरीब करना है, अपनी ज़िंदगी को गरीब करना है, अपने जिस्म को हमने गरीब करना है, कपड़ों से गरीब करें, अपने आप को जितना सादा रख सकते हैं उतनी सादगी में रहें, अपने दिल में से जितनी भी ख्वाहिशें निकाल सकते हैं वो निकालें ताकि हम खुदा के हुजूर मुबारक ठहरें। हम अपने जहन को गरीब बनाएं कि जितने भी जिस्मानी और दुनियावी बातें और ख्यालात हमारी दिल में जहन में आते रहते हैं, सोचें आती रहती हैं, ख्वाहिशें पूरी करने की सोचें आती रहती हैं, गाड़ियाँ ख़रीदने की सोचें आती रहती हैं,
پیسے زیادہ بنانے کی سوچیں آتی رہتی ہیں، یا اپنا سٹینڈرڈ زیادہ بنانے کی کوشش آتی رہتی ہے، یا دوسروں کے سٹیٹس تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر جو سوچیں آتی رہتی ہے، تو وہ ہم نے نکال کر ہم نے دنیا کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے دنیا جیسا نہیں بننا، ہم نے دنیا کی شان و شوکت نہیں لینی، ہم نے دنیا میں امیر نہیں ہونا، بلکہ ہم نے خداوند کی نظر میں اس زمین کی بات کر رہی ہوں، میں آسمان کی بادشاہی کی بات نہیں کر رہی، میں زمین کی بات کر رہی ہوں، یہاں پر آپ نے مسیح کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے غریب بنانا ہے۔ خداوند نے چاہا تو اگلے سبت کے دن اس پر اور کلام جو خداوند دینا چاہتے ہوں گے وہ خداوند اپنے نام کی خاطر ضرور دیں۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔